And welcome to the last session of the ongoing series of our Utthan Wellness Session Science of Forgiveness. Now I request our speaker Sangeeta Didi to share her valuable thoughts uh, and following with the question and answer session which is going to happen today. Sangeeta Didi, welcome back. I request you to take over the session, please. Om Shanti. Om Shanti. Good morning, all of you. And a very cold morning or warm morning. When you on the videos, it will be warm morning. Otherwise, it is a cold morning. Okay, thank you. To make it warm. So we'll just observe 1 minute again, silence, and recall the whole month. And obviously, what all efforts we had done for ourselves and what all we learned, and we must have decided something about it, what to do, how to do. So let's think ourselves as a point of light. I am a pure energy, powerful energy, situated in the center of the forehead. Very powerful, can handle everything around me. And I'm getting the rays from the Supreme. I, the point of light, am connected with the highest point, the Supreme Energy, and I'm getting the rays of love, peace, happiness from Him throughout. And throughout this session, we can even try to have this energy being showered on us through completely throughout this session. Om Shanti. Om Shanti. So, belated Merry Christmas to all of you. And you could see the Santa behind me. So, Brahma Baba is the Santa here. And it said that in the red, the white comes. I mean, the Santa comes in red and white. So the white is Brahma Baba, the founder of organization. The red is Shiva Baba, the point of light. So he comes and gives us this knowledge. What all knowledge हम लोग आपसे जो share कर रहे हैं, वो इस तरह परमात्मा के direct महावाक्य. And therefore the remembrance, there is that remembrance. So सभी ने बहुत अच्छे से celebrate किया होगा. It was मैरी तो दूसरे के लिए है, बट एवरी टाइम इफ आई कैन बी प्योर एंड पावरफुल आई विल बी हैप्पी. उन लोग एक दिन खुशी मनाते हैं, हम लोग रोज. जब मन खुश है तो रोज खुश, तो हैप्पी है. ठीक है, ओके. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट होमवर्क? होमवर्क में क्या था? डिटर्मिनेशन, राइट? And determination not to do it again, promising to the self कि मैं like कोई भी mistake हो गई, मुझे determine करना था. And then increasing the soul power. तो किसी ने किया होमवर्क, मिस्टेक हुई होगी सबसे. मिस्टेक फ्री तो कोई नहीं रहे ना एक हफ्ता. Okay. Anyone would like to share any experience about how they worked? Okay. So what we did until now was this Science of Forgiveness series. And in that we learned, first of all, why forgiveness is important. Forgiving means to free one who is in pain. This is called forgiveness. तो forgiveness में हमने यही समझा था कि suppose I am forgiving others, it is not because
आई एम बिगर और ही इज स्मॉलर, लेकिन मुझे अपने दर्द को हील करना है, मतलब मुझे उस परिस्थिति में से अपने आप को फ्री करना है. सो देयरफॉर आई वांट टू लेट इट गो. हो गया, हो गया. तो बिकॉज जितना पेन में होगा, मेरी कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग सिचुएशंस कम हो जाएगी. तो दिस इज व्हाट वी लर्नड इन द फॉरगिवनेस. बिकॉज पैटर्न ऑफ थिंकिंग हमने ये देखा था कि एंड यस, and then we talked about guilt. तो फर्स्ट था फॉरगिवनेस, और उसमें मेन ये भी था कि फॉरगिवनेस में कि कुछ भी बात हो जाती है, इमोशनल कैपेसिटी को मुझे कम नहीं करना है. तो उसके लिए कुछ बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन हाउ मच आई वांट टू रिमेम्बर इट. एंड जितना मैं याद करूंगी उतना आई एम क्रिएटिंग द पेन. याद करना मतलब आपने मुझे स्कोल्ड किया एंड इट वाज अमिड्स मेनी पीपल, सॉर्ट ऑफ इंसल्ट का तरह था. यू वांटेड टू मे बी इंसल्ट मी और व्हाटएवर. अब मैं उसको इधर रखती जाऊंगी एंड आई विल रीलिव द इंसिडेंट कि उस समय, उस दिन, उतने के सामने. And then I will collect all the incidents until now, maybe about you or about many people who must have done of this kind to me. और फिर क्या करूंगी, पहले का पेन और अभी का पेन ऐड कर दूंगी, और फिर हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से वो बिलोते हैं ना मक्खन, then I'll go on churning it. और फिर क्रक्स क्या निकलता है, फिर उससे मक्खन निकलता है. मक्खन क्या निकला कि जमाना बहुत खराब है, लोग बहुत खराब है. सो व्हाट आई एम डूइंग, एक आपने मिस्टेक किया और मैंने उसको इतना मैग्नीट्यूड कर दिया, फॉर मी द होल वर्ल्ड इज रॉन्ग. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फॉरगिवनेस नाउ. कि आपने कहा, आई अंडरस्टूड इट, एंड अब मुझे वैसे रिपीट नहीं करना है. एंड यू डिड एज पर व्हाट यू थॉट. आपने जो बोला वो आपका संस्कार था, लेकिन मुझे इसको, सिचुएशन इज वन थिंग, क्रिएटिंग पेन इज अनदर. तो वो पेन हम नहीं क्रिएट करेंगे. दिस इज व्हाट वी लर्नड. एंड सेकेंड वॉज रिलीविंग आवरसेल्फ फ्रॉम द गिल्ट. तो जैसे हमने देखा था, हो गया, मिस्टेक मेरे से हो गई, ओनली वन थॉट इज नीडेड, realization, determination. Realization, I did it. Determination, I will not do it again. And not apologizing again and again. Sorry, please. आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे हो, अभी तक ब्लू टिक मार्क नहीं आया, आई एम फीलिंग सो बैड, आई डोंट लाइक, व्हाई डिड आई से दैट. तो मैं जब तक आप मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, मुझे फील होता रहेगा. सो दैट वी लर्न कि वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है, इट इज हर प्रॉब्लम, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम. बिकॉज अगर मेरी गलती, मेरा सोचना मेरी प्रॉब्लम है, तो वो मेरे बारे में रॉन्ग सोचे, वो भी उसकी प्रॉब्लम है. सो आई डोंट वांट टू अपोलोजाइज अगेन एंड अगेन. आई एम रियलाइजिंग इट, दैट इज मोर देन इनफ. क्योंकि सॉरी हम वो व्यक्ति सॉरी नहीं फील कर रहा है, वो मुझे माफ नहीं कर रहा है. इसका कारण क्या है? बिकॉज उसका दर्द कम नहीं हुआ, इसलिए वो मुझे सॉरी, वो माफ नहीं कर रहा है. इसलिए हम कहते हैं मैंने कितनी बार सॉरी कह दिया, बस ना, अब आप क्यों रिपीट करते हो. अच्छा, उस समय वो चलो भूल, स्टॉप भी कर दे, बट दैट इंसिडेंट इज कलेक्टेड इन दैट पर्सन्स माइंड. फिर बाद में कुछ मिस्टेक होगी ना, तो पहले वाला पूरा वो फोल्डर ओपन हो जाता है, और फिर वो पूरा उस दिन
फिर पता नहीं कितने साल तक का फोल्डर ओपन होता है। कभी कभी 25 साल नहीं, 68 years old द कपल इज, एंड वो इंसिडेंट वो झगड़ रहे थे हमारे सामने कि जब शादी नई नई हुई थी और मैं मायके गई थी तो आपने ऐसे ऐसे फोन किया था, एंड देन द फर्स्ट चाइल्ड वाज बोर्न, उस समय 5th month में आपने ऐसे किया, और आज 68 की एज हो गई है। कितने साल का फोल्डर है? इतना तो कंप्यूटर, इतना पावरफुल तो ह्यूमन कंप्यूटर है। सो कलेक्शन ऑफ ऑल द इंसिडेंट्स, तो उसने, आपने उस समय सॉरी कर दी, पर अगर उसने इतना हर्ट कलेक्ट करके रखा है, यू कैन नॉट रिलीव दैट पेन फ्रॉम उनके माइंड से। सो आई कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ एवरीथिंग। हो गया, फिनिश। सो नाउ दैट इज हर स्टोरेज, उसका कबॉट है, उसको क्लियर करना है नहीं करना है वो उसके ऊपर। मेरा कबॉट में क्लीन रखती हूँ, इतना ही कर सकते ना कि सबके कबॉट क्लीन रखोगे आप? पॉसिबल है सबके कबॉट ठीक करना? अपना टेबल ठीक कर दो, फिनिश। सो दिस वाज द टू, एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट हो सकता है, इफ वन मोर पावरफुल स्टेप इज ट्रस्ट। शुड वी ट्रस्ट अगेन? फॉरगिव कर दिया, फॉरगेट भी कर दिया, कैन वी ट्रस्ट अगेन दैट पर्सन? मैनी आस्क्ड मी। अब ट्रस्ट कर सकते हैं उसके बाद? क्योंकि क्या होता है, इफ आई जस्ट गो ऑन डाउटिंग, उसने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, हमने उसको माफ कर दिया, अब उस सोल को एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए। जितना मैं उसको डाउट करती हूं, मैं और उसको डाउन करती हूँ, उसके एनर्जी को, और अपने आप को भी क्रोध में रखती हूँ। जब तक मैं उसको मतलब आई एम फॉरगेटिंग दैट इंसिडेंट, बट आई गो ऑन डाउटिंग, मतलब आई एम ऑलवेज इनसिक्योर एंड एंग्री। और जितना मैं इनसिक्योर एंग्री हूं, उतना दैट इज द वाइब्रेशन आई एम गिविंग टू दैट सोल। अब जो गलती कर रहा है उसने मान भी लिया, अब उसको चलने की पावर चाहिए। द सोल नीड्स द पावर। बीमार होने के बाद, बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत बड़ी बीमारी से आने के बाद क्या करते हैं? टॉनिक खिलाते हैं ना, एंटीबायोटिक, मतलब वो सारे वो विटामिन ए, विटामिन बी, ये सब दिया जाता है ताकि वो शक्ति आए, सो दैट वॉट एवर सर्जरी हुई या जो भी पेन हुआ उसको वो रिलीव कर सके। सो माई ट्रस्ट फॉर दैट सोल इज दैट विटामिन फॉर दैट सोल। नाउ ट्रस्ट, आप कहेंगे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, हाउ इट इज प्रैक्टिकल? वी आर नॉट सेइंग कि ट्रस्ट दैट की चलो वो अच्छा, एक तो गुड विशेस, ट्रस्ट द सोल इज प्योर, द सोल इज पावरफुल, द बेसिक क्वालिटीज ऑफ द सोल इज वेरी पावरफुल, वो हमें ट्रस्ट करना है। तो ट्रस्टिंग दैट द सोल इज बेसिकली वेरी प्योर, यस चलो मिस्टेक हो गई है, but now I want to give energy, very powerful vibrations. You are a powerful soul, you are a pure soul, you don't, so my feelings are the energy for the soul. मुझे भी शक्ति मिलेगी, उसको भी शक्ति मिलेगी, and there will be the joining of the relationship. नहीं तो हम डाउट करते रहे और फिर हम पूरा वापस कलेक्ट करें, कुछ बात हो जाएगी, बस मुझे लगा ही था आप ऐसे करेंगे, मुझे वैसे ही डर लगता था, तो क्यों किया उसने? क्योंकि आपको डर था। तो दिस इज द एनर्जी विच वी वांट टू गिव इट, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस उसको भी देना है और हमको भी देना है। नो, वो एक कार्ल मेलेंडर 1950s का टाइट रॉपर्स, बहुत फेमस टाइट रॉपर्स था,
वो जो जो रस्सी होती है ना उसमें चलते हैं। यूएस का फेमस 1950s और 60s में कार्ल वेलेंडर थे। एंड एक 60 स्टोरीड बिल्डिंग, 260 स्टोरीड बिल्डिंग, उसमें एक रस्सी होती थी, उसमें वो चलते थे। तो वेरी पॉपुलर, एंड विद इन मिनट्स ही वुड वॉक और पहुंच जाते थे। एंड देयर वुड बी सो मच, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, टीवी पे चल रहा है एंड इतना अपलॉड मिल रहा है। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट। उसने 60s तक भी चला, एंड देन ही ट्रेंड हिज होल फैमिली, उसके बच्चों को, वाइफ को, सबको, सब दे वर मास्टर्स। 1978 में ही वॉज 78 years old. So until that, and that he was doing it, and that was his last exhibit, वो लास्ट उसका प्रदर्शन था। जैसे ही वो चला और वो चले और वो लास्ट था, एंड सब टाइट लिप्ड थे, एंड ऑल द टीवीज वर शोइंग द सेम थिंग। पर लेकिन जैसे ही वो चले, वो गिरे एंड ही डाइड। इंटरव्यू हुई उनकी वाइफ की, तो पूछा कि हाउ कम दिस हैपेंड, अभी तक रिकॉर्ड है, कभी नहीं हुआ। तो द वाइफ ने बताया कि सिंस लास्ट 6 months उनको वो कॉन्शियस होने लगे। उन्होंने बार बार वो देखते थे, अच्छा ये 60 स्टोरीड बिल्डिंग, अच्छा इस पे ऐसे, क्या मैं चल पाऊंगा, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। और वो कितनी बार आके देखते थे, और ऐसे कैसे मैं चलूंगा। मतलब 6 months में उन्होंने उनको जैसे बहुत कॉन्शियस होने लगे, जो अभी तक उनको पता ही नहीं कि वो 60 स्टोरी में चल रहे थे, इतने ऊपर से चल रहे थे। और लास्ट 6 months जितने बार वो देखते थे, उनको फीलिंग होता था ओके इतना बड़ा, एंड देयरफॉर, और वो सोचते पता नहीं मैं चल पाऊंगा नहीं पाऊंगा। एंड फाइनली दैट डे, बिकॉज ही वाज सो मच कॉन्शियस, दैट crux is confidence. I will do it, I can do it, what makes the things easy. So if I just go on repeating negative thoughts about myself or anything, any performance, I will never be able to achieve it. तो इसलिए बार बार हम गलतियों का चिंतन करके, खुद की या दूसरे की या सिचुएशंस की इनसिक्योरिटी को सोच सोच के, आई एम मेकिंग दैट रियलिटी। So therefore this is what we have to do. So can we trust now? स्वयं में ट्रस्ट करेंगे एंड दूसरे में भी, एज अ सोल, कि द सोल इज वेरी प्योर, बेसिकली तो प्योर है, एंड देन देयरफॉर वी आर इंक्रीजिंग द प्योरिटी ऑफ द सोल बाय थिंकिंग इट। एंड आप देखेंगे द डिफरेंस, जितना आप विश्वास दिलाते हैं ना, वो व्यक्ति में आपके प्रति रिस्पेक्ट होता जाएगा, और ही विल कम आउट ऑफ दैट मिस्टेक वंस। This is very important. So now we can ask any questions. Question answer session है ना? दीदी नमस्ते। दीदी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब किसी को लगातार तनाव लेने की आदत हो जाती है, कई सालों से उसको वो मीन्स उसी माहौल में रहने की आदत हो जाती है, तो उससे कैसे निकला जाए? उसको बार बार उसी चीजों के अंदर आने लगता है ना, जो आप बता रही हैं कि टेंशन दूर रखो, मतलब पुरानी बातों को छोड़ो। बट लेकिन जो जिसको आदत हो गई 20 साल, जो अभी आपने कहा कि 68 में वो याद रखे हैं, तो उसको हैबिट हो जाती है ना उस चीज की, तो वो कैसे निकले उससे बाहर? मतलब वो एक जरूरी है जानना। नॉलेज कि मैं गंदगी में हूं, सबसे पहले दिस इज गंदगी जिसमें मैं बैठी हूं, ये नॉलेज चाहिए। क्योंकि पहले हम जस्टिफाई करते थे, नेचुरल है ना, हाउ कैन वी फॉरगेट, मिस्टेक ही इतनी बड़ी थी, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, आई एम नॉट डिवाइन,
मैं कोई भगवान थोड़ी हूं. सो वी यूज्ड टू जस्टिफाई. अभी हमको नॉलेज मिला कि दिस इज माय क्रिएशन, और इसलिए जितना जल्दी मैं निकलूंगी आई विल बी पावरफुल. तो पहले तो नॉलेज, और आदत नहीं होती है, हम निकल नहीं पाते हैं. कोई भी चीज जो मुझे पेन दे रही है, अब जैसे पैर दर्द कर रहा है, ठीक है, आपको आदत हो गई पेन बेयर करने की, बट दैट डजंट मीन कि पैर अच्छे है. यू हैव टू गेट इट ट्रीटेड, क्योंकि अदरवाइज इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. तो आपको आदत हो गई डजंट मीन इट इज गेटिंग बेटर. इसलिए अगर मुझे नेगेटिव, मुझे वो कलेक्ट करने की आदत है, लेट गो नहीं करने का नेचर है. एंड आई कुड, सिम्टम क्या है, मुझे बहुत पेन फील होता है, अंदर दर्द होता है ऑलवेज, या इनसिक्योर है. एनीथिंग विच इज इन कॉजिंग मी पेन, मतलब आई एम नेगेटिव, ये सिम्टम है. तो इसका मतलब आई हैव टू गेट इट, रिमूव इट, हैव टू गेट आउट ऑफ इट. तो इसलिए मुझे जब नॉलेज मिल गई, और फिर ये भी इजी है कि किसने क्रिएट किया. उन्होंने फोन नहीं किया हस्बैंड ने कि भाई, उन्हें विश नहीं किया बच्चे को, लेकिन सोचा किसने, तुमने विश नहीं किया, तुमने विश नहीं किया, ये किसने सोचा था? तो वाइफ ने सोचा ना. तो जितना मेरा क्रिएशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने पेन की. अब जैसे वन मदर, शी कम्स टू आवर सेंटर. तो बहुत बड़ा ये है साउथ दिल्ली, मतलब इधर ग्रेटर कैलाश में. उसके पास 1800 गज, मतलब समझ सकते हो ना आप, 1 लाख स्क्वायर फीट का घर है, एक ही चाइल्ड है. एंड वही कुछ मिस्टेक कुछ हो गया, और फिर ही उसने साइन करवा लिए मदर से और पूरा प्रॉपर्टी ले ली. अब वो बहुत हमारे पास आती कि क्या करूं, ये है वो है, और फिर उन्होंने केस कर दिया. नो, मदर एंड द चाइल्ड आर फाइटिंग, एंड स्टिल शी इज वेरी मच अनकंफर्टेबल. ऐसा किया, आई नेवर थॉट, एंड फिर व्हाट मिस्टेक आई डिड. चलो हमने कितना भी समझाया, फिर समझाया हम, फिर उसको रियलाइज हुआ. और मैंने 2-3 दिन पहले पूछा, बोला अभी मैं एकदम फ्री हूँ, और एकदम हमारे रिलेशंस अच्छे. मैंने कहा क्या किया? बोलो बस जो आपने बताया कि आग का गोला मैं ही हाथ में लेकर बैठी थी, और मैं ही जलती रहूंगी ना, वो थोड़ी जलेगा. मैंने आग का गोला को फेंक दिया, ठीक है, जो भी हुआ खत्म, आई एम फ्री. सो आई वॉज क्रिएटिंग. क्यों किया, नहीं किया, ऐसे नहीं करना चाहिए वो, तो मैं आग का गोला ले रही थी. आई एम फ्री नाउ. सो व्हेन आई नो आई एम क्रिएटिंग, आई विल थ्रो इट. मुझे जब लगेगा आपने कहा, तो आई विल वेट फॉर यू, आप सॉरी बोलो, आप चेंज हो जाओ. तो ये ही तरीका है बाहर निकलने का. निकल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है कि नहीं है? सब मास्टर्स है, सबको आता है सॉल्व करने. Okay. Pushpanjali Ben, you have any question? Anybody has any question? No, Didi, I don't have any question. Anybody wants to share any kind of experience they have went through while learning this topic? Didi, Praneeth here. So, see, I was going through the entire process. The most difficult part of this is the realization part on all the 3 stages. So, any process, any method that we need to adopt, that क्योंकि रिलेशन जब करते हैं तो उसमें हेट्रेड भी आती है,
और वो लगता है कि मैं क्यों, व्हाई नॉट हिम. हम्म, How do you differentiate between learning and realization, because these are very difficult thing to adopt. हम्म. See, one is first is realization. Yes, I did it. And then second, learning is a positive or a negative. It's a positive process. Yeah. So realization हो गई कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं चलना चाहिए, मैं फिर भी गई. I did this. अब उसके बाद I learned, क्योंकि कभी कभी हम सोच ये जो कहता है उससे नहीं सीखते हैं, करके सीखते हैं. अभी कोई कह दे वहां हाथ मत लगाओ जल जाएगा, या ऐसे मत करो, अब हम उसको कैजुअली ले लेते हैं, और सचमुच जब जल जाता है ना तो हमको फिर थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर नेक्स्ट टाइम बहुत अलर्ट हो जाते हैं. सो एक्सपीरियंस हो गया कि ये रीजन थी जिसके कारण मेरा हाथ जला. सो नाउ आई लर्न कि ऐसे करने से आई गो ऑन पे. आपने मिस्टेक किया, आई जस्ट वेंट ऑन रिपीटिंग इट इन माई माइंड एंड आई वॉज डिस्टर्ब, माई माइंड कुडंट कॉन्सेंट्रेट, मेरे काम पर असर पड़ रहा था. तो मुझे प्रॉब्लम तो मुझे भी हो रही थी ना, आपको तो जो हो रही थी. तो मैंने ये रियलाइज किया कि मैं जो गलत कर रहा था, बार बार सोच के बोल दिया नहीं करना चाहिए, नाउ इट इज अप टू दैट पर्सन, उसने उसको ऐसा नहीं करना चाहिए. तो आई रियलाइज्ड इट एंड देन आई लर्नड कि आई वाज एट प्रॉब्लम. मेरा ही टाइम वेस्ट हो रहा था, मेरा ही कंसंट्रेशन लूज हो रहा था. आई लर्नड कि दिस इज व्हाट आई लर्नड एंड देयरफॉर आई विल नॉट डू इट अगेन. फिर डिटर्मिनेशन. So that is good, you talked about कि realization and learning. Learning is positive, realization also is positive. So first is realization and then you learn from it. नहीं तो realize नहीं करते ना तो वो learning भी incomplete होती है. तो हम सोचते कि अब हाँ मैंने सीख लिया, कभी किसी को बोलो मत. जैसे किसी ने मिस्टेक करी, आपने कहा बच्चे को मत करो, बहुत समझाया, फिर भी उसने किया, आपने कहा करो, मैं तो अब कुछ बोलूंगा ही नहीं. तो व्हाट यू लर्नड नाउ हियर, व्हाट वाज योर मिस्टेक? उसने मिस्टेक करी बिकॉज ऑफ विच ही फेल्ड, वो तो उसका प्रॉब्लम. आपका क्या मिस्टेक था? हमने सोचा कि मैं कभी नहीं बोलूंगी, इसको बोलने से कुछ फायदा भी नहीं है. दिस इज नॉट आई लर्नड. I realized that I was always very much attached कि करो करो नहीं करेंगे. I was creating insecurity, anger while telling them. And that anger से मुझे दर्द हुआ. एक्सपेक्टेशन था कि इतना मैं पढ़ा रहा हूं, इतना मैं कह रहा हूं, इतनी फैसिलिटीज दी, इतनी एमिनिटीज दी, तो he should succeed, he should be in the forefront, he should be in the merit. तो मेरी expectation, attachment with what I was saying, that was my mistake. Yes. If I would have just told him, okay, I'll provide everything, but so I learned this, तो realization हुई, learning हुई. बाकी वो जो mistake किया वो तो उसको अपनी learning होगी. Thank you, ma'am. Wonderful. Very good question. Okay. So all would... The question. So all are satisfied, matlab everyone is practicing. हाँ जी, ज्ञान भाई बोलो. हेलो, ओम Yes. शांति दीदी, ये आवाज आ रही है आपको?
हाँ, एकदम क्लियर। दीदी अभी तक आपने जो हम लोगों को बताया, सभी चीजों को आपने हमारे आत्मा और परमात्मा से कनेक्ट करने की कोशिश की गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आप बता रही हैं कि सब कुछ एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन योर सोल, आप उसको कितना खाली रखते हो, कितना चीजों को पकड़ते नहीं हो। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये तो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, और कितना इसमें समय लगेगा कि लोग इन चीजों को अडॉप्ट कर पाएंगे, अपने में संग्रहित कर पाएंगे। क्योंकि आप तो बता दिए कि माफ कर दो, कहना बहुत आसान है, क्षमा कर दो, लेकिन उसको अपने आप में लाना बहुत कठिन होता है। तो कितना अभ्यास करें, कितना प्रयास करें, कितना ध्यान करें, कितना प्राणायाम करें, तो इन चीजों से लोग बाहर आ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको कहा कि ये आपकी प्रॉब्लम है ना स्पॉन्डिलाइटिस की, तो आपको थोड़ा ऐसे बेंड करना पड़ेगा। या आपकी ये नी की प्रॉब्लम है ना, तो आपको ऐसे बेंड करके ये 2-3 एक्सरसाइज करना है। अब आपसे होता ही नहीं, कभी किया ही नहीं, और थोड़ा सा किया फिर दर्द होने लगा, बल्कि दर्द बढ़ भी गया, लेकिन डॉक्टर ने बोला नहीं करो, क्योंकि यही इसका इलाज है। अगर आप नहीं ऐसे करोगे, फिजियोथेरेपी में ये वाला नहीं करोगे, तो मैं कितना भी फिजियोथेरेपी करूं नहीं होगा। अब फिर आप करे, फिर थोड़ा दर्द हुआ, पर डॉक्टर के वर्ड्स है आपके कि नहीं इससे फायदा होगा। तीसरे दिन फिर किया, चौथे दिन और किया, अब उसके बाद पेन थोड़ा कम हो गया, उतना हुआ नहीं। 5th डे और ट्राई किया, और 8 डेज के बाद आप अपना हाथ को वहां नीचे ले आओ और फिर करने लगे, फिर आपका बहुत अच्छा लगा। और करते करते एक दिन ऐसा हुआ, इतना फास्ट हुआ, आपका पेन गायब हुआ। सो एक दिन when you started with it, it was very difficult, and then but you kept that words in the mind, and you had faith on that words, and you went on doing it. आप करते गए और करते करते फिर इजी हो गया। एक दिन वो इतना इजी हो गया कि आप जितना मर्जी आप उसको बेंड कर सकते हो। तो जब तक नहीं करते कोई चीज तभी डिफिकल्ट होती है। एक बार करने लग जाओ तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। माउंट एवरेस्ट पे जाना इजी है, डिफिकल्ट है? इजी है, डिफिकल्ट है? चढ़ने वाले चढ़े, क्या था? डिटर्मिनेशन था, एंड करना है, ये फीलिंग थी। तो एनीथिंग इज नॉट डिफिकल्ट अंटिल यू डोंट डिसाइड, यू डोंट डिटरमाइन। और जैसे करने लग जाओगे यू विल सी द रिजल्ट्स। मैंने उसकी बात हुई, उसने मुझे कहा मिस्टेक हुई, ओके आई रियलाइज आगे से मैं नहीं करूंगी, फ्री। आई एम पावरफुल सोल, वो भी अच्छी आत्मा है। आपने ट्राई किया, एक बार किया, 2 बार किया, आप देखेंगे मैं इतना फास्ट निकल पाई। और मेरे में मेरी मिस्टेक है तो मेरे को मैं नेक्स्ट टाइम मैं मिस्टेक नहीं करने का इजी हो गया मुझे। और जब आपने अपने वो चेंज देखेंगे ना, इम्प्रूवमेंट, उसका जो सक्सेस इन योर वर्क, तो आपको लगेगा ये तो बहुत इजी है। ठीक है, हो गई ना, ओके फाइन। और एक दिन ऐसा आएगा, बात आई और मिस्टेक भी हुई, बोल भी दिया, लेकिन तुरंत रियलाइज करके उसको। तो करने से कोई चीज इजी होती है, जब तक नहीं करो तब तक सब कुछ डिफिकल्ट होता है। ट्राई करो, ये कहने की बात नहीं है, करने की बात है। आपका ही मन, आपके ही कमरे गंदगी है, आपको ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी साफ करने का, आपका ही कबोट है। तो जब साफ करने लग जाओगे आपको ही अच्छा लगेगा, अरे कितना अच्छा लग रहा है,
इसमें इस कमरे में बैठने का दिल करता है. So this is all of practice. First is determination, I want to do it. Faith on the words of the person कि yes ये करना चाहिए try, और उसके बाद action, and then habit, and then you can see the success. ठीक है. थैंक यू दीदी. अब करके बताना फिर मुझे, क्योंकि नहीं मिस्टेक तो मैं तो करता ही हूँ, बट मैं ये जानना चाह रहा था ना कि समटाइम्स क्या होता है ना, लोगों के ये आती है जाती है थॉट और वो सस्टेन करने लगता है. तो ये तो मैं रेगुलर प्रैक्टिस मान सपोज दैट मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं ये जानना चाह रहा था कि कितना आखिर में कितना समय लगेगा. मैं क्योंकि 1-2 साल से तो मैं रेगुलर करता ही हूँ, और आपका मैं ये कंटिन्यू जब से शुरू हुआ है तब से मैं देख ही रहा हूँ और समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और बहुत फायदा भी है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन पूरा जो फुल बोलते हैं ना वो नहीं हो पा रहा. यही मैं जानना चाह रहा था. जब थोड़ा हुआ और फायदा हुआ तो ज्यादा करोगे और फायदा होगा. थोड़ा भी किया तो आपने डिसाइड किया था, तो और ज्यादा करोगे तो पूरा फायदा हो जाएगा. धन्यवाद. धन्यवाद दीदी. ओम शांति. Okay, so I think so we all will practice. Yes, राजेश भाई करेंगे अच्छे से. या दीदी. और मन को एकदम फ्री रखेंगे, इसलिए मन की कैपेसिटी बढ़ेगी. आप ट्राई करके देखो. बहुत कुछ भी हुआ, हर कोई के लाइफ में होता है. बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का भी डिस्प्यूट हुआ, ये हुआ, हम अंदर रखेंगे, मतलब आई एम ऑलवेज इन दैट सिचुएशन. निकाल दो और कि ठीक है, उस सोल ने जो भी मेरा कर्मों का था कर लिया. सो जैसे हमने कर्मिक थियरी समझाई था कि वॉट एवर इज हैपनिंग ये मेरा ही कर्मों का फल है. तो जब मेरा ही है तो मुझे निकालने में बहुत इजी है. सो देयरफॉर फॉरगिवनेस. उसने क्रोध किया लेकिन गलती मेरी थी, इन द सेंस कभी मैंने किया था उसके ऊपर. इट कुड बी एनी टाइम. तो इसलिए कार्मिक लॉस एंड फॉरगिवनेस गो हैंड इन हैंड. तो देयरफॉर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, साल खत्म होने वाला है, तो फिगर्स तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमारी मेंटालिटी 2022 जैसी नर बनी रहे. लेट अस ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग. कोई भी मिस्टेक हुई, किसी से भी हुई, अंडरस्टैंड करके उसको, जो कलेक्शन है उसको निकालना. देन वी कैन वेलकम द न्यू ईयर. दैट न्यूनेस आएगी. इट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द न्यू ईयर, बट एवरी मिनट आई फील न्यूनेस, क्योंकि मैंने निकाल दिया. ओल्ड चीज निकाल दी, ओल्ड हैबिट्स निकाल. सो 2022 को बाय बाय करेंगे, फॉरगिव करके, फॉरगेट करके, एंड नाउ ट्रस्टिंग दैट द नेक्स्ट ईयर वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिर नेक्स्ट हम न्यू ईयर पे न्यू सेट सीरीज लेकर आएंगे. कौन सा सीरीज चाहिए आपको? एनी चॉइस आपके चाहिए कोई न्यू ईयर में? हम एक एक वैल्यू को एक्सरे करते हैं पूरे मंथ, सो दैट इट ड्रिल्स इन आवर माइंड, तो इजी हो जाए. सो मोस्टली विल डू ऑन एक्सपेक्टेशंस फॉर द न्यू ईयर. तो नए साल में, तो अभी हम 1 साल बाद मिलेंगे आपसे, 2023 में मिलेंगे अभी. ठीक है, तो आज हम मेडिटेशन करते हैं 1 मिनट, और रियली अंदर से पूरे सब कुछ समझते हुए, कार्मिक थियरीज को समझते हुए, और सब मिस्टेक्स समझते हुए. ईगो को देखा हमने पूरे साल,
सेल्फ रिस्पेक्ट को भी देखा, और आज मैं आत्मा, आई द पॉइंट ऑफ लाइट, अपनी इस जर्नी को हम देख रहे हैं, इस जीवन की जर्नी जो अभी तक चल रही है। मैं इस लेवल तक आई हूं, बहुत प्लस और माइनस हुए, इस साल में भी बहुत प्लस माइनस हुए। I learned from it. I realized my mistake. And now I make a vow to myself. हाँ, अब ये नए साल में कंटिन्यू नहीं होगा। दिस पावरफुल थॉट को हम पानी देते हैं परमात्मा की किरणों से। जो भी पावरफुल थॉट किया उसको रेज देते हैं परमात्मा की। I am a powerful soul. I am a pure energy. Ocean of love is प्यार का सागर अपने प्यार की शक्ति दे रहा है। शांति का सागर परमात्मा शांति की किरणें दे रहा है। मेरे इस थॉट को और अब नाउ it is easy for me जो भी मैंने पावरफुल थॉट लिया, it's easy now for me to implement it. सारे मेरे साथ जो भी है उनको भी हम सोल देखते हैं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, प्योर है बेसिकली। चलो हो गई मिस्टेक, द प्योर सोल, आई ट्रस्ट इट। दिस पावरफुल थॉट, आई एम रेडी to do actions, and bye bye to the old sanskars, old habits, painful nature. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you, everyone, for attending today's session. Let's meet next week with the new series in the new year. Till then, bye bye. Okay, Om Shanti. Om Shanti. Thank you.